जिले के सभापति जितेंद्र तिवारी के आदेश अनुसार जगह जगह पर गरीबों में मास्क वितरण किए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से कई हद तक बचाव किया जा सके। इसी बीच अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के तरफ से एवं मानसी तिवारी के नेतृत्व में रविवार को खांद्रा पार्टी ऑफिस के पास शांतनु मंडल के सहयोग से करीब 30 से 35 गरीब लोगों में मास्क वितरण किया गया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। आज को यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया आप लोगों ने? अंडाल ब्लॉक तृणमूल যুব কংগ্রেস পক্ষ থেকে খান্দ্রা অঞ্চলের সকলকে কিছু গ্রাম মানুষদেরকে মাস্ক বিতরণ করা হলো প্রায় 30 থেকে 35 জনকে। আমি যুব ব্লকের মেম্বার খান্দ্রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আমার ভালোবাসা। এই করোনা ভাইরাস বাড়ি থেকে দয়া করে বাইরে বেরোবেন না, একটা মহামারী আকার ধারণ করেছে যে এখনো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু যেভাবে উন্নয়ন করছে, যেভাবে খাটছে দিন রাত পরিশ্রম করে, সকলকে বলছি দয়া করে বাড়ির বাইরে বেরোবেন না, এতে আপনার ক্ষতি, সকল গ্রামবাসীদের ক্ষতি। आज का जो कार्यक्रम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का किया गया है कितने दिनों तक चलेगा? बस आज ही हो गया लास्ट। कितने लोगों में आपने मास्क वितरण किया? 30 जन प्राय। समाज सेवी के रूप में अब मुकुंदपुर के सीनियर सिटीजन भी गरीबों की मदद के लिए बढ़ रहे हैं आगे। आपको बता दें कि देश में जहां कई लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परवाह किए बिना गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच सिदली के मुकुंदपुर के कुछ सीनियर सिटीजन ने मिलकर प्रत्येक रविवार को करीबन 300 से 400 गरीब परिवारों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। और आपको ये भी बता दें कि खाना खिलाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आज जो यहाँ पे भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, किनके तरफ से किया गया? মুকুন্দপুর গ্রামের মানে বয়স্ক ব্যক্তিদের তরফ থেকে এই মানে খাদ্য বিতরণের অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটা বিশেষ করে মুকুন্দপুর গ্রামের বিজয় দে মহাশয় এবং আরো কতিপয় বয়স্ক ব্যক্তি তারা সকলে মিলে মানে অ্যারেঞ্জ করেছেন যাতে দুস্থ মানুষদের অন্ততপক্ষে কিছু খাদ্য দিয়ে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র রাজ্যবাসীর জন্য যা করছেন, আমরা যদি তার সামান্যতম কিছু করতে পারি তাহলে অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টাকে আমরা কিছুটা হলেও সহযোগিতা করতে পারবো। আর আমরা এটাই দেখাতে চাইছি যে শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের যে প্রেরণা, সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাদের মানে কিছু কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে একটুকু সরে এসে এই দুস্থ নিপীড়িত মানুষদের পাশে গিয়ে যদি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে পারে বড় ভালো হয়। কারণ সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতবর্ষ আজ এক ভয়ঙ্কর মানে কাল ব্যাধিতে ভুগছে। এই সমস্ত মানুষেরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, তারা আজকে বড় বিপদে পড়েছে। তাদের সামনে গিয়ে তাদের যদি একটুকু আমরা সহযোগিতা করতে পারি গ্রামবাসীদের তরফ থেকে, বয়স্ক মানুষদের তরফ থেকে, তাহলে এর থেকে ভালো আর কিছু হবে না। আমরা এইভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছি যে সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। শুধুমাত্র নিজের সুখ নয়, অন্যের সুখের দিকেও যদি আমরা কিঞ্চিত আর এগিয়ে যেতে পারি তাহলে পরে সমাজটা এই দুর্দিন থেকে হয়তো একদিন সুদিনের মুখ দেখবে। সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকবো। आप लोगों ने आज से जो काम शुरू किया वो वाकई सराहनीय काम है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যেখানে চুন দিয়ে গোল গোল দাগ করা আছে, হাত ধুয়ে আসা করাচ্ছি, মুখে আমরা মাস্ক লাগাবার জন্য বলেছি। তবে সকলেই হয়তো পেরে ওঠেন নাই, তো বেশিরভাগ মানুষই এটা কিন্তু মানবার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যেমনভাবে দিক নির্দেশ করেছেন আমরা সেরকম ভাবেই পরিচালনা করবার চেষ্টা করছি।
মোটামুটি বাংলায় বলছি, মোটামুটি আমরা 400 থেকে 500 লোকের খাবার আয়োজন করেছি। মুকুন্দপুর সিনিয়র সিটিজেন থেকে এগুলা ব্যবস্থা করেছি। আমি একটা কবির ভাষায় বলি, সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নেই। আজ যে আমরা মুকুন্দপুর সিনিয়র সিটিজেন থেকে যে মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, কারণ আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা বিশ্ব আজ আক্রান্ত করোনা রোগে আক্রান্ত। আজ মানুষ না খেয়ে পথে আকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকরি নেই, কাজ নেই, ঘরে খাবার নেই, দোকান বন্ধ। তাই আমরা মুকুন্দপুর সিনিয়র সিটিজেন থেকে আমরা ঠিক করলাম যে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, যারা আজ খেতে পাচ্ছে না, তাদের জন্য আমরা কিছু করি। তাই আমরা গ্রামের যত সিনিয়র সিটিজেন বা আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা, তারাও এগিয়ে এসছে, তারা কিছু কিছু সাহায্য করে আজ আমরা 3 থেকে 400 প্রায় 500 লোকের খাবারের ব্যবস্থা করেছি। তা আমরা প্রথমে এই পাড়াতে প্রথমে শুরু করেছি। আমরা ভাবছি এর পরেও আমরা কিছু ব্যবস্থা করব যাতে মানুষ খেয়ে বাঁচতে পারে। এটা শুধু আমাদের ভাষা নয়, এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও বলছেন মানুষ কোনো কষ্ট যেতে না পায়, মানুষ যেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাই সেই জন্য আমরাও এগেছি যে মানুষ যেন বেঁচে থাকতে পারে, কিছু খেতে পারে। ये बोले मैं वक्तव्य शेष करूं। यह प्रक्रिया कितने दिनों तक चलाने का आप लोगों ने विचार किया है? हम लोग चाहता है जे आज जो शुरू किया है, बीच बीच में सप्ताह में एक दिन हम लोग जरूर करेगा, इसलिए हम लोग जरूर कोशिश करेगा। कोरोना वायरस के आगे जहां सारा देश अपने घुटने टेक चुका है और देश में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के उखड़ा में नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम के चेयरमैन माननीय सुमित बनर्जी के नेतृत्व में हर दिन गरीबों की निःशुल्क जांच की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि निःशुल्क जांच के बाद उन्हें उनकी बीमारी के अनुसार निःशुल्क औषधियां भी दी जाती है। आपको बता दें कि यह मेडिकल कैंप तब तक चलेगा जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। এটা সকালে একটা খালি পেটে খাবে, ঠিক আছে, খাওয়ার আগে, আর বেশি করে জল খেতে হবে। आइए जानते हैं कि हेल्थ वर्ड के डॉक्टर पीयूष नायक का इसके बारे में क्या कहना है। यहाँ से देखा जा रहा है आप लोग के तरफ से जो गरीबों के लिए सुविधा अवेलेबल कराई गई है, वो कितने दिनों तक चलेगी और किन किन लोगों के लिए है? देखिए, ये एक आपातकालीन स्थिति है। जो अभी पैंडेमिक एक चल रहा है जो कोरोना वायरस का, वो एक आपातकालीन स्थिति है। बहुत पेशेंट्स और बहुत डॉक्टर जो कि सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे पेशेंट को कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वो कोई डॉक्टर के पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई डॉक्टर भी अगर चाह रहे हैं कोई पेशेंट को जाके ट्रीटमेंट करने के लिए वो सुविधा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी रहूंगा कि ये जो फोरम ने मुझे मदद मांगी है और मैं मदद के लिए भी तैयार हूँ। जो गरीब पेशेंट है जो कि डॉक्टर के पास डायरेक्ट जा नहीं पा रहे हैं और ट्रीटमेंट का सेवा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये फोरम के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आइए, हम लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे, फ्री से इलाज करेंगे और हम लोग की तरफ से जो बन पाएगा हम लोग करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर विशेषकर यानी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इलाज किया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे टाइप के पेशेंट आते हैं, खाली कोविड का तो पेशेंट नहीं आ रहा है। देखिए, कोविड किसको है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट फीवर का जो घर में डर के मारे आ नहीं पा रहे हैं, कि फीवर का कारण सिर्फ कोविड नहीं हो सकता, फीवर का कारण दूसरा भी बहुत सारे चीज है जिसके चलते फीवर आ सकता है। तो बहुत लोग डर के हमारे घर में रह रहे हैं कि शायद मेरे को कोविड हो गया होगा। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको फीवर भी है तो आपके हम लोग से मिलिए, हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग सिम्टम्स देखेंगे कि वो आपका कोविड से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोविड नहीं है तो नॉर्मल इलाज से भी वो बुखार ठीक हो सकता है। तो अगर घर में रहेंगे, अगर नॉर्मल भी कोई बुखार है और अगर लेट कर रहे हैं कोई पेशेंट, तो यहाँ पे आते आते लेट हो जाता है। तो कोई भी पेशेंट का अगर नॉर्मली फीवर आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा कि वो कोविड के चलते हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर फीवर का पेशेंट को कोविड नहीं हो सकता। चेकअप के दौरान क्या यहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं?
बहुत सारे पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट रहते हैं जो हम लोग गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में भेजते हैं जहाँ पे हम लोग का कोरोना का टेस्टिंग होता है। ऐसे पेशेंट बहुत सारे पेशेंट जो बाहर के ट्रैवल हिस्ट्री है, सर्दी खांसी बुखार, बहुत सारे काफी पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट को हम लोग क्वारंटाइन के लिए इधर घर में भेजते हैं या फिर हम लोग सरकारी अस्पताल में भेजते हैं। डॉक्टर पीयूष नायक, मैं हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू। यहाँ जो देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब निःशुल्क मतलब पेशेंट का चेकअप कर रहे हैं, यह कब से हो रहा है और हर दिन कितने पेशेंट यहाँ कर अपना चेकअप करवाते हैं? ये हम लोग आज नेशनल फुलफिल सिटीजन फोरम की तरफ से ये आज हम लोग एक तो जैसो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो सके, क्योंकि अभी कोरोना का वजह से पूरा चारों तरफ डॉक्टर का कमी है, इलाज का कमी है, जो गरीब आदमी है वो सब बहुत परेशानी में है। इसलिए करके हम लोग का फोरम के जो चेयरमैन है सुमित बनर्जी, उन्होंने हम लोगों को कहा कि इस तरह को कैंप करना है, मेडिकल कैंप, तो हम लोग जोर शोर से इसको किए हैं तैयारी और डॉक्टर साहब भी डेली आ रहे हैं। अब जब तक कोरोना सही तरीके से निर्मूल जब तक न हो पाए तब तक हम लोग ये कैंप चलाते रहेंगे। ये कैंप जैसे कि किसी का जुकाम, सर्दी खांसी हो गया, किसी का बदन दर्द हो गया, उसके बाद गैस का प्रॉब्लम, बुखार का, यही सब का ट्रीटमेंट यहाँ फ्री में होगा और फ्री में दवाई भी दिया जाएगा फोरम की तरफ से। अच्छा, यह कितने दिनों तक चलेगा? ये लगभग 3 तारीख तक अभी तक हम लोग चलाने के लिए रखे हैं प्रिपरेशन, और ये काम शुरू करने से पहले हम लोग प्रशासन की तरफ से एक एप्लीकेशन किए थे, प्रशासन हम लोग को मंजूरी दिया है करने के लिए, उसी हिसाब से आज से हम लोग शुरू किए हैं। अभी डेली हर रोज हम लोग 20 पेशेंट को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध देंगे।